Cut across live to Anand Sharma from the Congress. He is addressing a press conference in Delhi on Narendra Modi's 100 days of governance. Also for the purposes of tax. It's a matter of fact and record. The treaties and agreements which India had signed during our period to get information, included with many tax havens. There's just to give the few names, that's the Channel Islands, Cayman Islands, Bahamas, all these agreements and treaties were signed. Some information was obtained, but as part of the treaty, what action was to be taken, those actions were taken by the UPA government against the individuals about whom the details were made available and the information was made available. उसके अलावा इस काले धन पर कोई कार्य नहीं हुआ है, देश को इसकी जानकारी नहीं। इन्होंने एक SIT बनाई, सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय था, निर्देश था अध्यक्षता में, उस पर काफ़ी शुरू के दिनों में शोर हुआ, पहले एक सप्ताह में, कि हमने कर दिया। SIT तो बन गई, SIT ने किया क्या, ये प्रश्न पूछना क्या गलती है? और एक बार खबर छपी कि सूचना मिल गई, अगले दिन वित्त मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहना पड़ा नहीं मिली, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। ये इनकी कार्य प्रणाली है कि खबर फैला दो, गुब्बारा उड़ा दो, लोग देखते रहेंगे, गफलत में पड़ेंगे। हकीकत, ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। इन्होंने भ्रष्टाचार किया, एक विषय लिया था, बड़ा विषय, हर चीज़ को स्कैम कहा गया था, UPA को बदनाम किया गया था, निशाना साधा गया था। आज 100 दिन के बाद प्रधानमंत्री और उनकी सरकार बताए कि कौन सा स्कैम था जो उन्होंने चुनाव जिसके बलबूते पर लड़ा, जो आरोप लगाए हैं उस समय के कार्यकाल में इन्होंने UPA की सरकार के, वो कौन सी बात आज 100 दिन के अंदर ये लाए हैं, क्योंकि ये सत्य नहीं था। और पिछले कल भी इन्हीं की सरकार दलील कर रही है, आग्रह कर रही है सुप्रीम कोर्ट से कि कम से कम 46 कोल ब्लॉक तो चलने दीजिए। आपको याद होगा कि इस विषय को लेकर, अन्य विषयों को लेकर क्या कहा गया था। We all are for effective, stern action against corruption and probity in public life. Can the Prime Minister explain why 18 of his ministers, 18, are facing serious criminal charges? Compelling the Supreme Court to make this observation that it is for the Prime Minister to ensure that those with a criminal background are not promoted and included in his Council of Ministers. ये तो प्रधानमंत्री की उस पर चुप्पी क्यों? अगर सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कह दी तो स्पष्टीकरण तो बनता है, क्योंकि पंथ के प्रधान तो वो हैं, मंत्री उन्होंने बनाए हैं, कि तुम आपने ऐसे लोग क्यों रखे जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे लोगों को ना रखते तो हम उनकी बात को बड़ी विश्वसनीयता से लेते कि इन्होंने सच बोला है। ये भ्रष्टाचार का और राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहा है उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। ना इन्होंने गुजरात में ये किया था, जब सज़ा याफ्ता मंत्री इनकी सरकार में बाइज्जत काम कर रहे थे, केंद्र की सरकार में भी उसी को दोहराया गया। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे दिन की बात कही थी, अच्छी बात नहीं हो रही, अच्छा काम नहीं हो रहा। अच्छे दिन उनके ज़रूर आए हैं, BJP के लोगों के आए हैं, पर देश के सामने जो दिन है उसका हम आपसे उल्लेख कर रहे हैं। देश में बड़े सुनियोजित तरीके से संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है और कमज़ोर किया जा रहा है। There is a systematic and planned subversion of institutions which are the bedrock of Indian democracy, administration and governance. Beginning with the Parliament,
where the mandatory role and position of the leader of opposition has been disregarded with regard to important statute and statutory functions, from Lokpal selection and appointment to the Central Vigilance Commissioner, to the Information Commissioners and the NHRC as per the 4 statutes. There is no urgency shown for the appointment of the Lokpal, and perhaps that's why the leader of opposition has been kept out. There is a manner in which judiciary is being given a message. The exclusion of eminent jurist Gopala Subramaniam, a snub to the Collegium of the Supreme Court. These are some illustrations of lack of respect for institutions. The arbitrary decision to dismantle the Planning Commission, creating a vacuum midway through the 12th five-year plan, and giving an explanation which is questionable from the ramparts of the Red Fort, that because I believe in फेडरल स्ट्रक्चर, तो राज्यों का सम्मान करने के लिए राज्यों से बात नहीं की, मुख्यमंत्रियों से बात नहीं की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक नहीं बुलाई, सीधी घोषणा कर दी ख़त्म करने की। उसके बाद में 3 दिन के बाद जब हमने इस बात पर प्रश्न उठाया, मैंने आपके माध्यम से ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, तब उन्होंने एक ट्वीट कर दी कि अब सुझाव दो। हमने ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं देखी कि एक इमारत आपको अच्छी नहीं लग रही है, उस इमारत से जिनको लाभ पहुंचता है उन सबसे पूछिए, उस संस्था से जो लोग जुड़े हैं उनसे पूछिए, ये भारतीय गणराज्य है, उनसे पूछे बिना पहले उसको ध्वस्त कर दो और बड़ी खुशी से हर्षोल्लास से उसका बयान करो कि हमने तोड़ दिया, और 3 दिन के बाद फिर ट्वीट करना शुरू करो कि अब बताओ क्या बनाए। इसमें गंभीरता नहीं झलकती, ये गैर जिम्मेवाराना काम है। इसमें जवाबदेही बनती है प्रधानमंत्री की और इनकी सरकार की कि आप संस्थाओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में यही हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, पहला कदम वहां उठाया गया ताकि जो वहां पर शोध कार्य हो, जो वहां पर पुस्तकें छपें, वो दूसरे दृष्टिकोण से प्रभावित हों। जो भारत का इतिहास है सैकड़ों वर्षों का, उस इतिहास की लकीर से अलग हटकर बात की जाए। गुजरात में तो वो हुआ है, आप सबको मालूम है। मैं उस महापुरुष से नहीं मिला जिनको देश का दूसरा इतिहास और विज्ञान पता है, जो आपने और मैंने पढ़ा है, या हमारे शिक्षकों ने पढ़ाया है, या हमारे माता पिता ने समझाया है। वो नया एक इतिहास, संस्कृति, नई शिक्षा, ये सब चीज़ हमको बताने की कोशिश हो रही है। अभी हाल में विषय उठा है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का। These Indian Institutes of Technology, Indian Institutes of Management, Indian Institutes of Science, Nuclear Science, Space Science, all were established because of the vision of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. They have autonomy. IITs are established through an act of parliament. Now, what has happened in the case of IIT Kharagpur, and the instructions being given to the IITs that they have to conform to what the UGC is saying. UGC has a very limited role when it comes to IITs, IIMs, Indian Institutes of Science. Because it's very clear, like the UGC Act is there are also acts of parliament which govern these institutes of excellence, and any interference does not augur well when it comes to taking
education to the higher level and reassuring our students, our citizens, that the institutions of education will not be politicized or shaped to cater to one particular ideological stream. Institutions must remain non-political. Research and science must remain outside politics. Academics and academia, their freedom must always be respected. If it is undermined, we will be jeopardizing the future generations. These are just few illustrations I have given. उसी तरह शासन और प्रशासन में प्रधानमंत्री ने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसके क्या मायने हुए? हमने सोचा प्रशासनिक सुधार होगा, प्रशासन मजबूत होगा। मिनिमम गवर्नेंस का मतलब एक व्यक्ति, केंद्रीयकरण प्रशासन का, शासन का, द सेंट्रलाइजेशन of administration and governance. Minimum government does not mean undermining the cabinet form of government. My question is, has the sanctity of the cabinet form of government been upheld, or a silent shift being made to a presidential form where one individual and one office only is material? If that is to be denied by the BJP or the Prime Minister, my question is, why all cabinet ministers, all except one, excluded from the appointments committee of the cabinet? There's only 2-member committee now, as per the established norm of the cabinet functioning. The parent minister, cabinet minister of the concerned department, the Home Minister and the Prime Minister, these three constituted throughout the ACC, the Appointments Committee of the Cabinet. In one stroke, it was reduced to 2, the Prime Minister and the Home Minister. And the message was sent when the Home Minister, and with all respect to him, was not allowed to appoint his own private secretary or his OSD. Now it's a matter of fact, and this has been put on record in Parliament, and you all can check. That 2-member committee is also 1-member committee, because the files are put directly to the Prime Minister, and after his signature, the file on its way down comes to the Home Minister for post facto information. हस्ताक्षर के लिए नहीं, सूचनार्थ आती। तो ये आपका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है। मंत्रियों को बौना कर दिया गया है, उनका कद छोटा कर दिया गया। सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री और सचिव सीधा रिपोर्ट करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय को, और क्या रिपोर्ट भेजनी है वो भी अपने स्तर पर फाइनलाइज की जाएगी। ये वास्तविकता है। When the ministers are the executive head, each one of them without exception stands belittled. I know that some protestations have been made by some worthy ministers that that is not true. It is expected of them to say that because they don't have any other option. तीसरी बात, देश के प्रधानमंत्री को और सरकार को मिनिमम गवर्नमेंट की बात करने वाले लोग, उनका समय इसमें लग जाए कि कौन प्राइवेट सेक्रेटरी लगेगा, कौन ओएसडी लगेगा, कौन डायरेक्टर लगेगा, और रोज़ ये काम हो रहा है। 5 सर्कुलर डीओपीटी के निकले हैं। कभी संशोधन होता है किसी एक मंत्री को, किसी के अधिकारी को उसमें शामिल करने का, एक्सेप्शन की जाती हैं। पिछले 10 साल में जिन भारत के अधिकारियों ने
अखिल भारतीय सेवाओं के, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय आर्थिक सेवा है, जो अधिकारियों ने जिम्मेवारी के साथ 10 साल मंत्रियों के कार्यालयों में, कैबिनेट मिनिस्टर्स के और मंत्रियों के कार्यालय में काम किया है, उन सब को प्रताड़ित किया जा रहा है। केवल वो ना लगाएं उन कार्यालयों में, पर आज से पहले देश के इतिहास में ये नहीं हुआ अधिकारियों के साथ। उनको संवैधानिक सुरक्षा है। The civil servants of this country are non-political. They have to be protected and respected both. Their constitutional rights have been assaulted by these circulars that those who served for 10 years cannot be part of any ministry, hold any key positions. This is threatening the civil services, creating an atmosphere of fear, suspicion and distrust. मैं इसको 2 शब्दों में प्रशासनिक आतंकवाद कहूँगा। ये प्रशासनिक आतंकवाद है। अखिल भारतीय सेवाओं के सम्मानित कर्मचारी और अधिकारियों के लिए, जो स्वयं अपनी बात नहीं कह सकते, जिनके खिलाफ भेदभाव किया गया है, जिनके साथ ये व्यवहार इस सरकार ने किया है। इसके अलावा जहाँ तक संस्थाओं की बात है, मुझे आपसे एक चीज़ और कहनी है कि अगर हम इस देश में संस्थाओं की गरिमाओं को बनाकर नहीं रखेंगे तो हमारे प्रजातंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और चुनौती है। कुछ और विषय हैं। सरकार ने पिछले 3 दिन से, प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर, वित्त मंत्री ने पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से ताली बजाई है, अपनी पीठ थपथपाई है। कल टोक्यो में भी हुआ है। हमारी सरकार नहीं, मेरी सरकार ने ये कर दिया 100 दिन में। 100 दिन में 5.7% GDP बढ़ गई देश की, और उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं को दिया है, अपनी सरकार को दिया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देश में अच्छी प्रगति होनी चाहिए, देश की इकॉनमी मजबूत होनी चाहिए, GDP ग्रोथ बढ़नी चाहिए। मैं आपका सिर्फ ध्यान ले जाना चाहता हूँ 3 बिंदुओं पर। पहला, प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने जनवरी महीने में, आपने पढ़ा होगा, जो फोरकास्ट की जाती है कि आपकी इकोनॉमी GDP की कितनी बढ़त होगी, तो 5.6% थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपनी स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो फोरकास्ट करते हैं, उसमें 5.5% थी। इंटरिम बजट फरवरी 2014 का वित्त मंत्री चिदम्बरम ने 5.5% GDP बढ़त की घोषणा की थी। So these are facts as on record that whether the Prime Minister's Economic Advisory Council, whether the Reserve Bank of India or the interim budget gave the approximation of 5.5 to 5.6. This because of the steps that were taken. This because of the fiscal deficit was brought under control. This was because the current account deficit was brought under control. This was because the foreign exchange reserves were very strong. This was because the exports were booming. So all these factors put together, there was a bottoming out of the Indian economy in the last few quarters, particularly 2013. Therefore, with confidence, everyone had said, and I'll go beyond India, including the World Bank and the IMF, that India will grow at this pace. Good luck, we have no quarrel, these are the facts. पर हकीकत एक और है कि 90 दिन का है ये Q1। उस 90 दिन में से 55 दिन हम थे सरकार में, 35 दिन ये हैं। उस 35 दिन में से इनके मंत्री प्राइवेट सेक्रेटरी और OSD के झगड़े में उलझे हुए थे, दफ्तर में जा ढूंढ रहे थे, या 35 दिन में सब कुछ कर दिया। बधाई हो। तो आप उम्मीद कर सकते हैं अगर 35 दिन के अंदर इन्होंने सब कुछ कर दिया तो आने वाले दिनों के अंदर
ये देश चीन से आगे बढ़ जाएगा और हमारी भी शुभकामनाएं हैं, पर इनके अंदर कम से कम इतनी शालीनता होनी चाहिए थी कि कहते कि जो काम हो रहा था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम आश्वासित करना चाहते हैं देश को कि देश प्रगति के पथ पर बढ़ चला। ये ऐसा उन्होंने नहीं कहा। यही चीज़ प्रतिबिंबित होती है। आपने अगर देखा कल के कई विषय हैं, मैं उस पर भी आऊँगा, पर मुझे जो आपको कहना था, काफ़ी योजनाएं, जो राष्ट्रीय योजनाएं थी वो जारी हैं। और प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, उनकी सरकार का, कि जो उनको पहले समझ में नहीं आया था, जिसके लिए हमारी आलोचना की थी, हमको आरोप लगाए गए थे, उसके वो खुद ही समर्थक है और प्रशंसक हैं। अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने आधार का विरोध किया था, बीजेपी ने आधार का विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के अंदर बेंगलोर में चुनाव सभा में, क्योंकि नंदन नीलेकानी लड़ रहे थे, तो ये बयान दिया था कि मैं सत्ता में आते ही मेरी सरकार इसको स्क्रैप कर देगी। अब उन्होंने उसको स्वीकारा कि हमने अच्छा काम किया था। जब उसको जारी रख रहे हैं, कम से कम ये भी कह दें कि उन्होंने समझदारी से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, इनकी सरकार ने काम किया था, हम उसको स्वीकार करते हैं। उसमें गरिमा बनी रहती है पद की। गाली भी दो, स्वीकार भी मत करो और उसको जारी रखो, हमें आपत्ति नहीं है। देश हित में काम किए थे। डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफ़र को भी इन्होंने विरोध किया था, आज उसको स्वीकार करते हैं। मुझे ये भी आपको कहना है कि स्वच्छ भारत सब चाहते हैं, शौचालय हो सब चाहते हैं, निर्मल भारत अभियान का नाम बदल के स्वच्छ भारत अभियान रखना एक अलग बात, पर निर्मल भारत अभियान में बजटरी एलोकेशंस हैं और इस बजट के अंदर भी उसका नाम निर्मल भारत अभियान है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एक्सपेंडिचर बजट आप पढ़ लें। इंटरिम बजट में जो पैसा रखा गया था, एलोकेट किया गया था, उसका 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। 1 रुपया, 1 करोड़ नहीं, 1 रुपया, वही धनराशि है। और उसमें पैसा जो जाता है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बजट का है, अलग बजट हेड है। दूसरा जाता है इससे मनरेगा के बजट हेड से टॉयलेट्स बनाने का, शौचालय बनाने का देश के गांव के अंदर। स्कूल का जो टॉयलेट्स का काम है उसके लिए सेपरेट बजटरी एलोकेशन है, सर्व शिक्षा अभियान में अलग से बजट हेड है। मेरा प्रश्न ये है, हमारा प्रश्न, कि आपने उसमें 1 रुपया नहीं बढ़ाया, पर कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर आके बना दें। ज़रूर कॉरपोरेट सेक्टर को बनाना चाहिए, उनकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर पहली जिम्मेवारी स्टेट की होती है, शासन की, सरकार की होती है। और इसलिए ये कार्यक्रम चल रहे हैं। बेहतर होता प्रधानमंत्री ये कहते कि देश में ये अभियान चल रहे हैं, मेरी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है इनको और आगे बढ़ाने के लिए, उसमें इजाफा करने के लिए। केवल नाम बदलने से और पिछली चल रहे राष्ट्रीय अभियानों को स्वीकार न करने से अपने पद की गरिमा को बढ़ाया नहीं है, बल्कि एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। बहुत बुलंद आवाज़ के अंदर देश में आर्थिक अस्पृश्यता